Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Computerized Accounting with GST. In last lecture, we have seen some important concepts under GST. Like we have seen what is GST. You all know GST stands for what? Goods and Service Tax. Then we have seen GST in, that is Goods and Service Tax Identification Number. And this GSTN, it's made up of 15 digit number, right? It is of 15 digit. It is consisting of, or it contains what things? It contains first two digits, it will be of state code. Okay, किस स्टेट का अकाउंट है या फिर किस स्टेट का जो जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किस स्टेट के लिए बना रहे हैं. ओके, सो दैट इज फॉर दैट इंडिकेट्स द स्टेट कोड फर्स्ट टू डिजिट्स. देन पैन नंबर. PAN digit will be of how many digits? It is of 10 digits, right? Then comes the number which shows us what it shows. It is showing that this PAN holder, it is having how many business in the same PAN number. मीन्स ये जो नंबर है पैन डिजिट के बाद जो आता है वो नंबर इंडिकेट करता है कि एक पैन नंबर के अंदर कितने ऐसे रजिस्टर्ड शॉप्स है. ओके, मीन्स एक ही पैन के अंदर कितने रजिस्टर्ड शॉप्स है उस स्टेट में, within the same state. Okay, that is the number. Like if anybody is having 2 or 3 shops, then the number will be 2 or it can be 3. If no only one shop is there, then the number will be 1. Okay, the next is Z, which is by default. Okay, then the last is what? Last is nothing but it is a checksum digit. Means some calculations will be done upon the digits and then that number will be displayed in the last. So likewise, you are going to get a 15 digit PAN number. Okay, not PAN number, GSTN number. Then we have seen what? We have seen HSN code. What is the full form of HSN code? Yes, it stands for Harmonized System of Nomenclature. So how to name the code? For that also the code is there. How to name the company's code? For that also the code will be given. Then next is SAC. What was SAC? Services Accounting Code. Okay, so it was used for what purpose? It was used to classify each service under the GST. So how to classify each service under GST? For that purpose the SAC code was given. Then we have seen the taxes under GST. There were various taxes. There were two taxes. What were they? Inter-tax and intra-tax. What is inter-tax? Inter means integrated. That means out if you are going to send the goods to other state, then it will be which one? Integrated. Okay, IGST. If it is within the state, that means intra-state. Intra-state means what? Within the state. Same state के अंदर अगर आप goods का supply कर रहे हैं, then it will be within the state, that is intra-state, and it is of two types. What is that? Central GST, that is CGST, and state GST, that is SGST. Okay, so this all things we have seen in our last lecture. Today we are going to see the practical part of GST. Means before applying GST in Tally, it was simple taxes which were given. Okay, but now using GST, how we can do the accounting things. Okay, that today we are going to see with one example. So this is the question which we are going to see practically how to do it. See, what is the question? With the help of any open source or free education version accounting software, create a company name. So now which software we are using? We are using Tally. So in Tally, we are going to create first company named Shri Ganesha Trading Company. हम लोग टैली में पहले कंपनी क्रिएट करेंगे. कंपनी का नाम रहेगा श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी. एंड what is the address? Shahupuri Estate. What is the address? Shahupuri Estate, Kolhapur, Maharashtra, pin code 416004 with
GSTIN. See here the GSTIN code is given. That is 27 ABCDE 2345 F1 Z4. See this is of 15 digit or not? Calculate and see. Yes. The next, enter the following transactions in appropriate vouchers by applying GST. Prepare sales or tax invoice and GST reports. Now see here only they have told to prepare sales or tax invoice and GST report. Okay, but here two questions are given. One is for purchase and another is for sale. लेकिन आपको report सिर्फ sales का दिखा रहा है. But we are going to see both reports. Okay. Now see what is the question. First one is on 1st April 2019 purchased 50 units of CCTV at the rate rupees 10,000 per unit. GST 28% from Shiva Enterprises Kolhapur Maharashtra pin code. So see क्या किया है, हमारी कंपनी कोल्हापुर में है, वो कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में, और हम जो परचेस कर रहे हैं सीसीटीवी, ओके वो सीसीटीवी हम लोग को कितने जीएसटी लगा सीसीटीवी पे के ऊपर 28%. ओके और हम कहाँ से खरीद रहे हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से. ओके वी आर बाइंग दिस सीसीटीवी फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ. सेम स्टेट है. ओके दोनों के स्टेट सेम है, हमारा कंपनी भी महाराष्ट्र में है और हम लोग बाय भी महाराष्ट्र से ही कर रहे हैं. तो क्या होता है फिर जीएसटी लगने वाला जो है 28% वो इंट्रा स्टेट के लिए है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो ऐसे दो टैक्सेस में वो ऑटोमेटिकली जीएसटी हम लोगों ने 28% लिखा तो वो क्या करेगा उसको डिवाइड कर देगा 14% फॉर CGST दैट इज सेंट्रल एंड 14% फॉर स्टेट GST दैट इज SGST. ओके देन नेक्स्ट वन सी सेल्स वन ऑन 22nd April 2019 sold 30 units of CCTV. 50 units 1st April को बाय किया और 30 units 2nd April को सेल किया. ओके कितने में सेल किया, लिया था 10,000 में पर यूनिट. एक कैमरे का यूनिट कितना था पैसा, एक कैमरे का 10,000 था, तो 50 कैमरास लिए तो कितना होगा, दैट यू कैलकुलेट, यू शुड नो दैट व्हाट इट इज. ओके देन उसी तरह से उसने बेचा मीन सोल्ड. ओके दैट कंपनी सोल्ड और फॉर हाउ मेनी रुपीज, एक कैमरा कितने में बेचा 12,000. ओके एंड जीएसटी उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया 28%. टू एंजल्स पब्लिक स्कूल, लिया कहाँ से था, शिवा एंटरप्राइजेस से, और बेचा कहाँ पे, एंजल्स पब्लिक स्कूल दैट इज इन सातारा. ओके अब ये बेचा सातारा में, कोल्हापुर में लिया था लेकिन बेचा सातारा में, लेकिन दोनों भी स्टेट महाराष्ट्र के ये राइट. सो यहाँ पे पिन कोड भी दिया है महाराष्ट्र. सो ये भी महाराष्ट्र में है, तो दैट्स वाई हियर ऑल्सो वट एवर द टैक्सेस अप्लाइड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन CGST एंड SGST दैट इज स्टेट एंड सेंट्रल. ओके सो फर्स्ट तो हमको कंपनी क्रिएट करना है. ओके फर्स्ट हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर कंपनी क्रिएट करने के बाद हमको ये जीएसटी अप्लाई करना है, मीन्स जीएसटी लगाना है, तो हमको उसके फीचर्स चेंज करने पड़ेंगे. आई विल शो यू वन बाय वन हाउ टू डू इट. लेट अस सी. ओके सो टैली, मैंने टैली ओपन किया है. नाउ हियर देयर इज नो कंपनी, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट कंपनी. ओके सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, राइट. सो हम लोग पहले कंपनी क्रिएट करेंगे. क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी. अगर सपोज आपके पीसी में आपने ऑलरेडी कोई कंपनी क्रिएट किया है तो वो दिखा रहा है, तो पहले उसको शट करना पड़ेगा. ओके देयर विल बी ऑप्शन इन दिस साइड शट कंपनी. अगर कोई और कंपनी चालू है तो पहले उसको शट करो, फिर नया कंपनी क्रिएट करो. ओके सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, यो आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी. क्या था कंपनी का नाम, श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी. ओके सो नाम क्या आएगा, श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी. ओके देन मूव फर्दर, सेम नेम, एड्रेस क्या था एड्रेस, शाहूपुरी, राइट. शाहूपुरी एड्रेस था कि नहीं, शाहूपुरी स्टेट. सो आई एम गोइंग टू राइट द एड्रेस है शाहूपुरी एड्रेस. शाहूपुरी estate, not address, sorry. In address we are going to write Shahupuri estate, right. Then where it is in Kolhapur. कहाँ पे है कंपनी,
कोल्हापुर में. So I'm going to write Kolhapur here only. Okay, comma and Kolhapur. Kolhapur. Now, country is India. State is Maharashtra. So हम लोग महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे. Then पिन कोड क्या दिया था क्वेश्चन में, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो. क्वेश्चन में पिन कोड क्या था? 416004. 416004. 416004. ओके. फिर ये सब कुछ नहीं दिया है, फ़ोन नंबर नहीं दिया, फैक्स नंबर नहीं, ईमेल नहीं, वेबसाइट नहीं. ओके. फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट आल्सो वी हैव सीन. फाइनेंशियल कब स्टार्ट होने वाला है? यहाँ पे 2019 है, राइट. दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर कब चालू हुआ? 2019. सो यहाँ पे हम लोग को करना है मार्च, सॉरी अप्रैल 2019. ओके. देन पासवर्ड हमको नहीं रखना है, तो वी विल जस्ट गो फर्दर. टैप टैप दबाओ और एक्सेप्ट आएगा. एक्सेप्ट आएगा तो येस करना है. वाई क्लिक करो या फिर येस पे क्लिक करना. ओके. कंपनी क्रिएट हो गया. सी यू कैन सी द कंपनी नेम, श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी. नाउ हम लोग ने सबसे पहले काम किया कंपनी क्रिएट का. जीएसटी अप्लाई करना है तो आपको फीचर्स में जाना पड़ेगा. सी यू कैन सी F11, दैट इज फीचर्स. क्लिक ऑन F11 और क्लिक डायरेक्टली यू कैन क्लिक दिस ऑल्सो. ओके. यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, तो हमको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को क्लिक करना है. देन enable goods and service tax GST. yes, we want to apply GST, so यहाँ पे आपको yes करना पड़ेगा. then next is what? set और alter GST details, इसको भी आपको yes करना है. ओके. then move further. जैसे ही आपने टैब दबाया तो आपको ये स्टेट पूछेगा. yes, महाराष्ट्र में ही है. then again टैब रेगुलर. यहाँ पे आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं. यहाँ पे GST इन IN UIN दिया है, तो GST इन्होंने दिया है तो हमको वो GSTN डालना पड़ेगा. सी दिस इज द GSTN 27 ABCDE 2345 F1Z4. सो आई एम गोइंग टू टाइप दैट. व्हाट इज दैट? 27, देन ABCDE 2345, then it was F1Z and 4. okay, so this was the GSTN number जो हम लोग को दिया है. वेरीफाई द कंपनी GST. yes, you can press anything. मंथली ई-वे बिल एप्लीकेबल, ये सब हमको कुछ नहीं बोला है, सो वी विल जस्ट मूव फर्दर. ओके, विल जस्ट मूव फर्दर. देन यहाँ पे सेट अल्टर GST. सी दिस ऑप्शन, सेट और अल्टर GST रेट डिटेल्स. यहाँ पे आपको येस करना है. ओके, येस करने के बाद ये वाला आएगा GST डिटेल्स फॉर कंपनी. सो टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है. ओके, सो क्लिक ऑन टैक्सेबल. इंटीग्रेटेड टैक्स उन्होंने कितना दिया है? 28%. कितना परसेंट है? 28%. तो आपको यहाँ पे 28 लिखना है. व्हेन यू प्लेस टैब, आपने टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली उसने सेंट्रल टैक्स 14% कर दिया और स्टेट का 14%. वो ही रहने देना है आपको. देन प्रेस एंड टैब ओनली. फिर एनेबल GST क्लासिफिकेशन, इसको भी आप येस कर सकते हो. ओके, फिर बाहर, यहाँ पे नो रहने दो, बाहर निकलो. येस प्रेस करना है या फिर वाई प्रेस करना है. ओके, ये फिर से ओके. अब क्या करना है इसके बाद आपको प्रेस नहीं करना है. ओके, आपको टैप नहीं प्रेस करना है. आपको ये स्क्रीन आने के बाद में क्या प्रेस करना है? Ctrl+A बटन फॉर सेविंग द स्क्रीन. ओके, ये स्क्रीन सेव करना है आपको. यहाँ पे आपको टैप दबाना है क्या? नहीं. ये स्क्रीन को सेव करने के लिए आपको Ctrl+A दबाना है. व्हाट यू वांट टू प्रेस? यू वांट टू प्रेस Ctrl+A. So see, I'm going to press Ctrl+A. So उसने सेव कर दिया. ओके, नाउ फर्स्ट टू थिंग्स वी हैव डन. पहले हम लोग ने कंपनी क्रिएट किया, फिर हम लोग को GST अप्लाई करना था, इसलिए हम लोग ने क्या किया? फीचर्स में जाके उसका चेंज कर दिया फीचर्स. ओके, GST को अप्लाई किया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट?
नेक्स्ट स्टेप इज लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप बटन दबाना पड़ता है। ओके, अकाउंट्स इन्फो में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, फॉर व्हाट पर्पस? लेजर क्रिएशन। सो क्लिक ऑन अकाउंट्स इन्फो, सेकेंड ऑप्शन दैट इज लेजर्स, लेजर्स के ऊपर क्लिक करो, क्रिएट, क्रिएट को क्लिक करो। ओके, सो सबसे पहले तो परचेज सेल्स, ये दोनों बातें यहाँ पे है क्वेश्चन। आई विल शो यू द क्वेश्चन। सी, यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सेल, तो हम लोग को दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक परचेस अकाउंट एक सेल अकाउंट, बराबर। फिर हमको सीसीटीवी बनाना है। सीसीटीवी बनाने का जरूरत है क्या? नहीं। सीसीटीवी बनाने का जरूरत है? नहीं। हम लोग को सीसीटीवी नहीं बनाना है, वो हम लोग को आइटम्स में बनाना है। दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू। परचेज सेल्स दो हो गया। देन हम लोग को SGST और CGST हमको यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो हम लोगों को वो टैक्स को डिवाइड करें। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू क्रिएट टू टैक्स, SGST और CGST। वो दो लेक्चर्स बनाएंगे हम लोग। और दूसरा ये शिवा एंटरप्राइजेस है, वो हम लोग किससे ले रहे हैं? फ्रॉम शिवा एंटरप्राइजेस, राइट। तो शिवा एंटरप्राइजेस से प्राइसेस से अगर हम लोग ले रहे हैं तो शिवा एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा? ओके, हम लोग रिसीव कर रहे हैं किससे? शिवा से, तो शिवा क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, और यहाँ पे हम लोग एंजल्स को दे रहे हैं टू एंजल्स पब्लिक स्कूल, तो एंजल्स पब्लिक स्कूल ये भी हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। एंजल पब्लिक स्कूल, ये एंजल पब्लिक स्कूल रिसीव कर रहा है, सो ये क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेटर। ओके, सो इस तरह से हमको कितने लेजर्स बनाने? वी वांट टू क्रिएट हाउ मेनी लेजर्स? वी वांट टू क्रिएट परचेस, सेल्स, शिवा एंटरप्राइजेस, एंजल्स, CGST and SGST. So we are going to create 6 ledgers, right? So let us create ledgers first. First ledger I'm creating is purchase. Okay, I'm going to create purchase account. Then purchase account under group क्या आएगा? Purchase ही आता है। Okay, then इन्वेंट्री वैल्यू से अफेक्टेड, यस। टाइप्स ऑफ लेजर, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इज GST एप्लीकेबल? यस, GST तो एप्लीकेबल है। फिर सेट और अल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पे आपको यस करना है। ओके, देन जैसे ही आपने यस किया तो वो ये वाला स्क्रीन दिखाएगा, CGST का डिटेल्स। सो यहाँ हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल को क्लिक करना है, क्योंकि ये परचेस है तो हमको यहाँ पे क्या करना है? परचेस टैक्सेबल। क्लिक ऑन दिस। देन इंटीग्रेटेड, अगेन यू वांट टू राइट 28%, सो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? 14% में दोनों को डिवाइड कर देगा। देन प्रेस टैप टैप एंड कम आउट। नाउ टाइप ऑफ सप्लाई, सर्विसेज है क्या? गुड्स है। सर्विसेज हम लोग सप्लाई करें कि गुड्स? हम लोग गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी में हम लोग सीसीटीवी बाय और बेच रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज को नहीं। ओके, प्रोवाइड बैंक डिटेल, देयर इज नो नीड। देन ओपनिंग बैलेंस इज नॉट देयर, फिर टैप प्रेस करो, इट इज गोइंग टू आस्क यस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस बटन। ओके, फर्स्ट लेजर हो गया। सेकंड इज सेल्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप क्या आएगा? सेल्स, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। अगेन प्रेस टैप, यस, GST इज एप्लीकेबल। सेट और अल्टर GST, यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है। देन अगेन दिस स्क्रीन इज गोइंग टू कम। यहाँ पे अभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स का था, तो सेल्स टू SEZ टैक्सेबल। ओके, सेल्स टैक्सेबल और परचेस टैक्सेबल। अगेन कितना परसेंट है? 28%। ओके, आई विल शो यू वेर इट इज। सी, यहाँ पे परचेस के लिए 28% था और सेल्स के लिए भी 28% है। क्वेश्चन में चेक करते जाओ, अगर अलग अलग दिया रहेगा टैक्स तो आपको वही टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दोनों को 28% है, इसलिए 28% मैंने लिखा। क्लिक ऑन टैप बटन। अगेन टाइप ऑफ सप्लाई, हम लोग सर्विसेज नहीं गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो गुड्स को सेलेक्ट करो। नो, press tab, yes, click on yes button. Second ledger is also created. Now we are going to create the third ledger. What is the name of third ledger? Yes, GST. Okay, what we are going to create? SGST account. Okay, yes, GST क्या है? टैक्स है, तो ये किसके अंदर आएगा? अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, ये टैक्स है तो इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ ड्यूटी हम लोग का GST है, बराबर, अदर्स नहीं, GST। तो हम लोग GST अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे
ये SGST यानी कौन सा टैक्स है, ये स्टैंड्स फॉर स्टेट टैक्स, तो हम लोग को यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट टैक्स 0%, ओके, नॉट अप्लीकेबल। अगेन क्लिक ऑन यस। आपने कितना चेंजेस किया, पहले आपने नाम लिखा है SGST, फिर अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी इज GST, टैक्स टाइप इज स्टेट टैक्स एंड नथिंग एल्स, ओके। बाकी कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है, ओके, सिर्फ इतना ही आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे यस, ओके। सो ये फर्स्ट हो गया SGST। नाउ वी विल क्रिएट CGST अकाउंट। अगेन सेम थिंग, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही आएगा क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स है, ओके। अदर्स में आएगा क्या, नहीं, GST में। देन कौन सा, सेंट्रल टैक्स, टैक्स टाइप क्या है, सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज नो, नॉट एप्लीकेबल। देन अगेन क्लिक ऑन यस, ओके। 4 ledgers we have created now। 2 companies का नाम जो था एंजल एंड what was the name, Shiva Enterprises, okay, Shiva Enterprises, we are purchasing from Shiva Enterprises, so Shiva Enterprises, शिवा एंटरप्राइजेस क्या आएगा, शिवा एंटरप्राइजेस हम लोग बाय कर रहे हैं तो वो सेंट्री क्रेडिटर, क्लिक ऑन सेंट्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल, सो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, टैब ही दबाना है। इंडिया महाराष्ट्र बराबर है पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड दिया है। शिवा एंटरप्राइजेस का एड्रेस दिया है क्या, दैट वी विल सी फर्स्ट, लेट अस सी चेक वेदर द एड्रेस इज गिवन। यस, शिवा एंटरप्राइजेस कोल्हापुर में है और पिन कोड 416001, सो वी विल टाइप दिस, शिवा एंटरप्राइजेस इट इज इन कोल्हापुर, ओके। देन पिन कोड इज 416001, 41600, yes, okay. Then press tab again, go further GST। ये कंपनी का GST पूछ रहा है, शिवा का। हम लोग का जो कंपनी था उसके लिए हम लोग ने लिखा है शिवा कंपनी का GST IN UN उन्होंने नहीं दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, ओके। देन व्हाट हो गया क्रिएट, देन अगेन यू वांट टू प्रेस यस। Next one is Angel. Angel Public School, right? So Angel Public School. Angel Public School account. Okay. So this will be, इसको हम दे रहे मीन्स रिसीवर इज एंजल पब्लिक स्कूल, तो वो क्या आएगा, सेंट्री डेटर, सेलेक्ट सेंट्री डेटर, मेंटेनेंस, ऑल दिस थिंग्स। एड्रेस दिया है क्या एंजल स्कूल का, दैट वी आर गोइंग टू सी, यस, एंजल पब्लिक स्कूल सातारा, पिन कोड इज 4150001, सातारा 41, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट सातारा एड्रेस में, देन पिन कोड इज 4150001, okay, correct. Press tab and again go further and again click on yes, okay. So this also step has been done। लेजर क्रिएशन भी हो गया हम लोग का, हम लोगों ने 6 लेजर्स बनाए। नाउ हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन जो रहता है वो प्रेस करना है, ओके। सो क्विट, यस, आई वांट टू क्विट नाउ, आई हैव क्रिएटेड द लेजर्स, सो आई विल कम। नाउ द मेन थिंग कम्स, लेजर क्रिएशन हो गया। नाउ इन्वेंट्री, वाउचर एंट्री डायरेक्टली नहीं कर सकते, वाउचर एंट्री के लिए हमारे पास जो CCTV कैमरा सब है वो कहाँ पे डालना है वो भी तो देखना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज वी वांट टू गो वेयर, वी वांट टू गो इन इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट्स इन्फो के नीचे इन्वेंट्री इन्फो है, उसके ऊपर क्लिक करो, ओके। सो फर्स्ट सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में आप ग्रुप या आइटम्स नहीं बना सकते, पहले आपको यूनिट्स ऑफ मेजर ही बनाना पड़ता है, ओके। सो क्लिक ऑन दिस यूनिट्स ऑफ मेजर, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, सिंबल, व्हाट इज द सिंबल फॉर दिस, सो सी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कितना यूनिट्स लिया है, तो यहाँ पे यूनिट्स दिया, राइट। तो हम लोग को पर यूनिट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी यूनिट रहता है, कभी कभी पीसेस रहते हैं, तो वो ही हम लोग को सिंबल यूज करना पड़ेगा।
सो सिंबल हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग डाल सकते हैं। अब यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे यूटी। ओके, फिर उसका नेम क्या है, यूनिट। ओके, देन यूनिट, यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पे यूनिट करके आप दबाओ, व्हेन यू प्रेस यू देन दिस इज गोइंग टू कम, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है आपको। ओके, देन प्रेस टैब, दिस यूनिट हैज बीन क्रिएटेड। ओके, एक ही बार करना है, एक ही यूनिट क्रिएट करना है, दैट इज यूटी। फिर बाहर निकलो यहाँ से, देन अगेन प्रेस एस्केप बटन एंड क्विट, यस। सो यूनिट क्रिएट हो गया। अगेन अगेन इसको, इससे बाहर निकलना है तो एस्केप बटन। नाउ यूनिट्स ऑफ मेशेस क्रिएट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि कैमरा किसके अंदर, सीसीटीवी किसके अंदर आता है, कैमरास के अंदर। सो स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। ओके, क्रिएट, यहाँ पे हमको कैमरा लिखना है, व्हाट वी वांट टू राइट, सी सीसीटीवी इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ अ कैमरा। ओके, सो कैमरा कौन अलग अलग इसके हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास विल बी देयर, तो ग्रुप का हम लोग नाम देंगे कैमरा। ओके, comes under primary only. Then we are going to press this. Here you, if you want, category has camera. Okay, then we can come out also. Yes, nothing to do, only यहाँ पे नेम आपको कैमरा लिखना है, बाकी आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट सेव इट, दैट मीन्स प्रेस yes. ओके, एक ही ग्रुप क्रिएट करना था, अभी बाहर निकल सकते हैं, क्विट, यस। नाउ अगेन कम आउट ऑफ दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टॉक आइटम्स। ओके, क्रिएट स्टॉक आइटम। कौन सा आइटम हम लोग बाय कर रहे हैं, सीसीटीवी, तो यहाँ पे लिखना है सीसीटीवी। ओके, देन अंडर, यहाँ पे देखो पूछा है प्राइमरी ग्रुप है या कैमरा ग्रुप है, हम लोग ने ग्रुप बनाया है कैमरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैमरा। ओके, फिर यूनिट क्या है, यूटी, हम लोग ने यूनिट्स ऑफ मेजर में लिखा है ना यूटी, तो आपको सेलेक्ट करना है यूटी। ओके, देखो अंडर कैमरा एंड यूनिट्स इज यूटी। जीएसटी एप्लीकेबल, सो जीएसटी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है, ये स्टॉक पे जीएसटी एप्लीकेबल है क्या पूछ रहे हैं, तो यस जीएसटी तो एप्लीकेबल है। देन प्रेस दिस बटन, यहाँ पे आपको येस लिखना है। ओके, ये याद रखना। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये हम लोग स्टॉक के लिए ही कर रहे चेंजेस, अदरवाइज हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया या फिर यूनिट्स ऑफ मेजर्स किया, उसमें हम लोग ने ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, सेट और अल्टर, फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग दिस हैज, वी आर सेटिंग दिस हैज येस। ओके, देन वी विल मूव फर्दर, तो ये पूछेगा। ओके, सो when the tax details are set using classification, it ignores the direct tax information below. Okay, then press on value, यहाँ पे taxability, it is taxable, so taxable आपको use करना है। Then integrated tax, so integrated tax कितना था, 28%, right? So 28%, 14 उसने divide कर दिया। Okay, type of supply is goods or services, goods, so हम लोग ने goods। रेट ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं करना है, क्वांटिटी नहीं, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर प्रेस दिस यस बटन। ओके, सो स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया। ओके, सो कम आउट ऑफ दिस, कम टू द मेन स्क्रीन, दिस इज अवर मेन स्क्रीन। सो हम लोग ने इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले क्या किया, यूनिट्स ऑफ मेजर्स, then we have created stock group, then we have created the stock item. Okay, now the last part which comes to you is creating accounting. तो सबसे लास्ट हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करना है। ओके, सो वील जस्ट क्लिक ऑन ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स, बाय डिफॉल्ट पेमेंट आएगा, लेकिन हमको पेमेंट करना है क्या, नहीं, हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन परचेस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, परचेस, सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन परचेस, सी F9 परचेस, आइदर यू कैन प्रेस F9 फ्रॉम योर कीबोर्ड या फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ओके, सप्लायर इनवॉइस नंबर, यू कैन राइट एनी इनवॉइस नंबर, कोई इनवॉइस नंबर आपके क्वेश्चन में दिया है क्या, नो, नथिंग इज गिवन, सो वी कैन राइट एनी इनवॉइस नंबर, आई एम राइटिंग 01। ओके, डेट इज 1 अप्रैल इटसेल्फ, 1 अप्रैल 2019 ही डेट था, कभी बाय किया, 1 अप्रैल 2019, 15 यूनिट्स ऑफ सीसीटीवी। ओके, पार्टी अकाउंट किससे बाय किया हम लोगों ने, परचेस हम लोगों ने शिवा एंटरप्राइजेस से किया था क्या, एंजल पब्लिक स्कूल से किया था,
यस, हम लोगों ने शिवा एंटरप्राइज से परचेस किया, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट शिवा एंटरप्राइजेस। क्लिक दिस, फिर यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, शिवा एंटरप्राइजेस एड्रेस बराबर है, जीएसटी नाइन पता नहीं आपको तो वो रहने दो, परचेस लेजर परचेस अकाउंट। ओके, नाउ नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम लोग ने लिया था, सीसीटीवी। सो आपको सिर्फ कीबोर्ड से सी प्रेस करोगे तो ये लिस्ट आ जाएगा, तो आपको सीसीटीवी आपको सेलेक्ट करना है। ओके, कितना क्वांटिटी परचेस करना है, हाउ मेनी क्वांटिटी यू वांट टू परचेस, यू वांट टू परचेस 50 यूनिट्स, कितना पर यूनिट कितना है 10,000। ओके, सो सी 50, देन रेट पर लिखा है, रेट पर मीन्स पर यूनिट। ओके, सो here I am going to write 10,000। ओके, नाउ से ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू कैलकुलेट 50 into 10 हो गया, देखो 5 lakhs। ओके, सो ये सीसीटीवी हो गया। प्रेस टैब एंड सी, हियर यू कैन सी दिस लाइन इज देयर। ओके, हमको फिर से टैब प्रेस करके इसके नीचे आना है, टोटल के नीचे। ओके, जो आंसर आ रहा है आपको डैश के बाद ये वाला, इसके बाद हम लोग को आना है, सो अगेन प्रेस टैब। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे अब क्या करना है, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, दैट इज यू वांट टू अप्लाई जीएसटी। आपको क्या अप्लाई करना है, जीएसटी। सो प्रेस एस, सो एस जीएसटी आ गया, यस। सो फर्स्ट हम लोग एस जीएसटी लगाएंगे। ऑटोमेटिकली उसने 70,000 लिया, क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पे दिया है कि 14%। ओके, दैट्स वाई। अगेन प्रेस टैब, अभी हमको क्या करना है, सी जीएसटी, तो आप सी प्रेस करो, सी जीएसटी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो। ऑटोमेटिकली उसने 70,000 लिया, क्योंकि इट इज बोथ आर डिवाइडेड इनटू इक्वल परसेंट, राइट, दैट्स वाई। सो दोनों का हो गया। ओके, देन we will move further, then directly it is asking for the narration. If you want you can write the narration, otherwise you can skip this part, it will do. So the what is the answer, परचेस किया तो हम लोग को कितना पैसा लगा, 6,40,000। कितना पैसा लगा हम लोग को, 6,40,000। ओके, सो नाउ ये डन। सो विल जस्ट प्रेस again tab, and now pressing yes, it is going to save your purchase account. So press yes, so purchase is saved. Now the next ledger is, sorry, next voucher entry is, next question ये वाला हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेल करना है। ओके, ऑन 2 अप्रैल, तो हमको डेट भी चेंज करना है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस डू दैट। सो सेल करना है, सो वेर इज सेल्स, F8। आइदर यू कैन प्रेस F8 फ्रॉम योर कीबोर्ड, F8 प्रेस कर सकते हो आप कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ओके, सो हियर we want to change the date, so we are going to press F2, F2 for changing the date। so हमको 2 अप्रैल को करना है, तो यहाँ पे आ गया 2 अप्रैल, so I am going to use that only। okay, 2 April 2019, press enter, then reference number, you can write any reference number, I am using 1, then party account name, हमको किसको सेल करना है, एंजल पब्लिक स्कूल, सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पार्टी नेम एज एंजल पब्लिक स्कूल। डिलीवरी नोट्स नॉट गिवन, डिस्पैच दिस ऑल थिंग्स इज नॉट गिवन। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। dispatch details is not given, order number is not given. See, if you're writing also, it is not going to harm you. I will write order number as 101, date is 2nd April, and what is mode or terms of payment, nothing is given, terms of delivery is also not given, address is same। okay, सेल्स लेजर के सामने क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, सो सेलेक्ट दिस सेल्स अकाउंट। ओके, नेम ऑफ आइटम, क्या बेचना है हमको, व्हाट वी वांट टू सेल, सीसीटीवी। ओके, सो आई विल जस्ट प्रेस सी, देन दिस लिस्ट इज गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द सीसीटीवी। ओके, हमें कितना क्वांटिटी सेल करना है, 30 यूनिट्स, फॉर हाउ मेनी रुपीज, 12,000 पर यूनिट। ओके, सो व्हाट यू विल डू, हम लोग को कितना क्वांटिटी सेल करना है, 30 पर यूनिट, हाउ मेनी रुपीज, 12,000, तो कितना हो जाएगा, 3,60,000। देन फिर से सेम थिंग, फिर से टैब दबाओ और उसके नीचे आ जाओ, लाइन के नीचे। सो आ गए। अब इसके ऊपर भी उन्होंने जीएसटी लगाया है, देखो जीएसटी 28% दिया है, जो भी यहाँ पे परसेंट रहेगा वही हमको सर्विस के लिए करना पड़ता है, सेल के लिए करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 28% है सेम। सो यो अगेन
we are going to place S. So SGST आ गया. Select that SGST. SGST तो डिफॉल्ट CGST. ये मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये हाथ से नहीं लिखना चाहिए था. कैलकुलेशन कर सकता है. कहीं तो हमने सेल्स के टाइम पे गड़बड़ की. समथिंग इज मिसिंग. Yes, CGST nature of. Okay, so see, actually, this answer, this 28%, it will be on. Okay, we will create this. I will come out of this. We are not going to create. We are not going to create this. Okay, quit. Yes, क्योंकि ये wrong है. वो उसने खुद देना चाहिए था. I will just check the ledger. Ledger creation के time पे. Where is that account info? Ledgers. Alt. Okay, I'm going to check this sales account. सेल्स अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया था. यस, सेल्स अकाउंट ग्रुप पे ये नहीं हुआ है. दिस वन. सेल्स अकाउंट, सेल्स इन्वेंट्री एप्लीकेबल, यहाँ पे यस टैब अनडिफाइंड टैक्स 20%, taxability goods. Now we will again see whether it is going to do anything, means चेंज होता है क्या. ऑटोमेटिकली वो CGST और SGST ऑटोमेटिकली आना चाहिए. ओके, वन मिनट. just see, purchase account is this configuration. Let me check the configuration. Allow GST for non-recreative. शो ऑल GST टैक्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा है. सो शो स्टेट एंड GST. ओके, इट इज़ नॉट शोइंग. ऑल GST टैक्स. ओके ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज. ये हमको नहीं करना है. ओके, कम आउट ऑफ दिस. सेल्स अकाउंट.
नाउ अगेन वी विल सी द अकाउंटिंग वाउचर. परचेस बराबर क्रिएट हुआ है, सेल्स नहीं हुआ था. सो अगेन वी विल सी द अकाउंटिंग वाउचर ऑफ सेल्स. ओके, सो फर्स्ट लेट अस चेंज. डेट चेंज करके लिए है उसने ऑटो, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था, दैट्स वाई. यू आई एम गोइंग टू राइट 1. अगेन पार्टी अकाउंट इज एंजल, सो सेलेक्ट एंजल. CCTV 30 units, per unit is 12,000. SGST by default, why it is not showing? See it show to you actually. यहाँ पे मुझे हाथ से टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट इट इज़ नॉट शोइंग. तो सी समटाइम्स अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो ASGST ओके परचेस के लिए आ गया, तो यहाँ पे भी आना चाहिए था ऑटोमेटिकली. नाउ यहाँ पे 14% है, बट अपना अमाउंट के ऊपर, ओके जो अमाउंट लगाया है उसके ऊपर अप्लाई होता है. सो यहाँ पे SGST पहला इसमें कैसे आया था, परचेस में 70,000. ओके बट यहाँ पे वैसे नहीं आएगा. यहाँ पे कितना आएगा, 50,000, क्योंकि वो था 50 यूनिट्स और 5 लाख के लिए. यहाँ ये है 3,60,000. सो इसके ऊपर अगर आप GST लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको कितना आएगा ये आंसर, 50,400. ओके 50,400. तो सेम यहाँ पे CGST, ओके CGST सेलेक्ट करो, सेम ही आएगा क्योंकि दोनों को इक्वली डिवाइड किया है, दैट्स वाई. सो अंडरस्टूड कैसे करने का है. ओके सो दिस इज हाउ. सी एक्चुअली दिस कम्स बाय डिफॉल्ट. अगर सपोज एग्जाम में ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं आया तो आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा. वैसे भी ये हम लोग प्रैक्टिकल के लिए करने वाले क्या पता नहीं. प्रैक्टिकल दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पज कि GST कैसे अप्लाई करते हैं. ओके सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट टाइम वी विल सी वेदर कि एनी आइटम, इफ स्टॉक आइटम एंड ऑल द थिंग्स क्रिएशन है या नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज. अगर सपोज नहीं आ रहा है आपको तो आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से कि 3,60,000 के ऊपर अगर मैंने कितना GST है, हम लोग कितना GST बोल रहे थे, कैलकुलेशन 28% को हम लोगों ने डिवाइड किया था, राइट. तो फिर हम लोग ने उसको क्या किया, हम लोग ने उसको 12% से डिवाइड किया था, बराबर है. तो 12%, राइट. 12% SGST और 12% SGST और हम लोग ने 12% इसके लिए दिया था CGST. 12% था क्या, 14%, आई थिंक 14%. ओके 3,60,000. How much it is, 3,60,000. If you are going to apply, multiply by 12 and divide by 100, so you are going to get how much, that you have to see. Okay, not 12, sorry, 14%. Into 14%. सो दिस इज करेक्ट आंसर. ओके सो क्या करना है, कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 3,60,000 इंटू 12, नॉट 12, सॉरी कितना परसेंट, 14%, सॉरी 14% फॉर SGST और CGST. तो आपको क्या करना है, 3,60,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100. अगर आप वो कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा. उसी तरह से परचेस में क्या था, 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको 70,000 वो आएगा. ओके सो उस तरह से अगर यहाँ पे नहीं आया तो आप मैन्युअली कर सकते हो. देन गो फर्दर, प्रोवाइड GST डिटेल्स. यस, शिपिंग बिल नंबर नहीं दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके डेट, आपको कभी शिप करना है उसी दिन करना है. हो गया, फिनिश. नाउ दिस सेल्स ऑल्सो हैज बिन फिनिश. सो वी हैव सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस, परचेस एंड सेल्स. नाउ दे आर सेइंग दैट यू वांट टू प्रिंट इट. ओके आपको इसका प्रिंट करना है. सी द क्वेश्चन. सी दिस टू थिंग्स वी हैव डन. यहाँ पे क्या बोला है, प्रिपेयर सेल्स टैक्स इनवॉइस एंड GST रिपोर्ट. So how we are going to do that, that we are going to see. Okay so how to play, how to display.
आई एम गोइंग टू, यहाँ पे सिर्फ सेल्स के लिए बोला है, बट आई एम गोइंग टू शो यू फॉर बोथ पर्पस. सो यू वांट टू फर्स्ट प्रेस यस, नहीं तो ये चला जाएगा. ओके, प्रेस यस. सो दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड. नाउ कम आउट ऑफ दिस, इससे बाहर निकलो. ओके, सॉरी, नो. Now see, if you want to see the report of sales invoice and purchase, then you want to come in this main screen, gateway of tally. gateway of tally पे आना है. This is a main screen, masters. यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन है, रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन है. क्लिक ऑन दिस डिस्प्ले. यहाँ पे डे बुक है, क्लिक ऑन डे बुक. परचेस दे हैव नॉट क्रिएटेड. ओ नो, आई विल कम आउट. परचेस उन्होंने निकाल दिया फिर से. ओके, आई विल क्रिएट परचेस. एक बार परचेस को क्रिएट करते हैं फटाफट. परचेस दिखा तो रहा है. फर्स्ट डे डिस्प्ले. क्लिक ऑन डिस्प्ले, then day book. Okay, okay, purchase was there but sales was not there. Delete this second purchase. Sorry. Yes, why it is not showing sales? Day book for 1st April. It should show both. Let me see sales. सेल्स का सेव नहीं किया है उसने. ओके, सो सेल्स का सेव नहीं किया. देखो पहले से दिखा रहा है, दैट्स वाई इसने सेव नहीं किया है. लेट अस चेंज द डेट. इट इज रेफरेंस नंबर 101 एंजल. ओके, बोथ आर देयर. डेट चेंज करोगे तो दिस इज 2 अप्रैल, दैट्स वाई. और 1 अप्रैल का परचेज भी दिखाता है. ओके, सी दिस इज 2 अप्रैल. सो कम आउट. यस, दिस इज सेल्स. सी डेट चेंज है इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है. ओके, सो दिस इज फॉर 2 अप्रैल. if you are changing the date for 1 अप्रैल, शो यू 1 अप्रैल. ओके, समझा कैसे करने का है. अगर आपको कौन सा, सी पहले से देखेंगे. दोनों भी क्रिएट कर दिया, अभी हमको डिस्प्ले करना है. सो विल जस्ट क्लिक ऑन डिस्प्ले. डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद डे बुक. तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल में हम लोग का क्या था, परचेस. सो ये परचेस आ गया वाउचर. क्लिक ऑन दिस. सो दिस इज हाउ योर परचेस वाउचर गेट्स क्रिएटेड. ओके, यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. आप अभी प्रिंट पे क्लिक करो. वो कैसा दिखता है मुझे आपको वो दिखाना है. यस, आउटपुट कैसा आएगा, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. इट इज गोइंग टू आस्क यू वेयर टू सेव. नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन द डेस्कटॉप एंड आई विल राइट योर परचेस.
uh, okay, now I will come out of this. Now we are going to again click on daybook and we will just change the date. We will make it 2nd April. एंजिला सेल्स हम लोगों ने 2nd अप्रैल को किया था. ओके, सो क्लिक ऑन दिस अगेन. सी दिस इज व्हाट वी गॉट. सो अगर ऐसा पूछा कि कैसे है तो ये ऐसा करना है, आपको दिखाना है. देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन अगेन. प्रिंट. Now here the printer is not connected, that's why I will show you how it looks actually. Save it. Okay, now you come out. Okay, now I will show you how the report looks. Okay, so see these two reports has been created. एक परचेस पहले देखेंगे हम लोग परचेस का कैसे दिखता है. See, invoice. Okay, so all details are here. Whatever you write, all details is going to come over here, and this is the report of what, of purchase. Okay, now I will close this. इसका ही प्रिंट आउट हम लोग जब आप प्रिंट आउट लेते हो तो यही पूरा आता है. ओके, सेल्स का देखेंगे अभी कैसे दिखता है. See, this is about sales. So same. Okay, who is a buyer, all that comes. Okay, so state code महाराष्ट्र कोड 27 ऑटोमेटिकली लिया हम लोगों ने. जो जीएसटी एंड आईएन प्रोवाइड किया था उसमें से जो 27 है वो महाराष्ट्र का कोड है, ऐसा वो उन्होंने बराबर ले लिया. ओके, सो दिस इज हाउ आवर सेल्स एंड परचेस रिपोर्ट हैज बीन क्रिएटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीएसटी. सो जीएसटी रिपोर्ट हमको प्रिंट करके दिखाना है, तो क्या करेंगे, फिर से वी विल क्लिक ऑन डिस्प्ले. Then after clicking on display button, here the statutory report is there. Okay, click on this statutory report. Then it is asking what, GST or quit. We want GST, so I'll click on GST. So GST R2. So see, this is the GST report. Okay, so this is the GST report which has been created, so that we want to take the printout. इसका आपको प्रिंट आउट लेना है. इसका आपको प्रिंट आउट लेना है. Let me see whether it is correct or not. Taxable value 5 lakh. And amount is 1,40,000. This is for liability. Okay, let me see the other one. GST 1. Okay, nothing is there. Come out. GST 3B. What is that? Okay, this is also not there. So only 2. GSTR 2 ही आपको क्लिक करना है, वही दिखाना है आपको. Okay, so this is the report and we want to take the printout of this. So this way we have created everything. So thus we have finished this question, we have completed this question. तो यहाँ पे जो जो बोला था वो हम लोगों ने सब किया. तो सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना है, फिर फीचर्स में जाके टैक्स को जो है वो एस करना है. हम लोग को उसको नो था तो उसको एस करना है. So after that you want to create the ledgers, then you want to create what, vouchers. Okay, then we have seen how to display the reports also and how to display the reports of GST also. So this is how we created our company and using what, GST, by applying GST. Okay, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिकल इसका देखा. नेक्स्ट टाइम वी विल सी, दिस वाज विद इन द स्टेट. अगर अदर स्टेट में भेजना है तो कैसा टैक्स अप्लाई करते हैं, दैट क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, so this is all for today. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe, and enjoy learning.